ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. डिस्क्लेमर, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस क्लास. इस क्लास के बाद तुम्हें नंबर सिस्टम्स पूरा नहीं आएगा, राइट? इफ यू आर एक्सपेक्टिंग 1.5 घंटे की क्लास तुम कर लोगे और कुछ कैट और जैट के क्वेश्चंस भी करूंगा मैं तुम्हारे साथ, राइट? वो 5-6 क्वेश्चंस करके तुम्हें लगे अरे नंबर सिस्टम्स तो सर मजा आ गया आज, यू नो आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट नंबर सिस्टम्स, अब तो वी आर गोना नेल दिस एग्जाम. ऐसा नहीं होगा. The only purpose of this class and taking those questions, past year CAT and ZAT questions, is to generate that interest, right? Ki number systems is not difficult. It is a basic understanding, right? You need a basic understanding to understand numbers, right? And if you fare well in number systems also, a good base is created for all the other chapters, all the other sections that are going to come later, like arithmetic, algebra. Agar acha base and number systems ka, things are going to be very, very easy later, right? So the whole purpose is to generate that interest, right? Number systems is a very big section, and this class simply introduces you to all major concepts. I'm going to introduce all major concepts to you one by one. Next screen is going to be about the agenda of number systems, the topics that appear in number systems. आज सारे topics हम touch करेंगे, right? Detail में नहीं जाएंगे, right? We are going to focus on the breadth, not the width. Sorry, not the depth of this chapter today. Okay. Simply number systems, syllabus for CAT. There are 8 topics that appear in number systems. Okay. First is very basics about number systems, understanding the numbers, right? कुछ नहीं, इसमें ना तो HCF होता है ना रिमाइंडर होता है, कुछ ना कुछ numbers पे आ जाता है. Some question based on counting, right? That is what the basic is. Also, we're going to discuss this all. Second is divisibility rules, right? Which number is divisible by 15, 12, 10, 5, and so on. Then we're going to touch base on HCF and LCM. Now, don't get complacent कि भाई HCF LCM तो हमें यार 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, इसके लिए हम क्यों बैठे क्लास में. कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो तुमने 8th स्टैंडर्ड में नहीं देखी होंगी HCF में, ठीक है, और LCM में भी. Then factorization, then number of zeros in an expression, then remainders, positive and negative remainders, and then there's additive and multiplicative property of remainders. इन दोनों चीजों को आज हम देखेंगे. Then units digit of an expression, and then base systems. इसके अलावा नंबर सिस्टम्स में कुछ भी नहीं है, राइट? अगर कोई कह रहा है कि हाँ ये चीज भी होती है वो चीज भी होती है, बेवकूफ बनाया जा रहा है तुम्हें, ठीक है? क्या एक ऐसा एग्जाम है, इट्स एन एप्टीट्यूड एग्जाम, राइट? ऑफ कोर्स सिलेबस की कोई लिमिट नहीं है, right? But what we have described, or what we have kind of categorized, not described but categorized, is there are like 6 main chapters: number systems, arithmetic, algebra, then we have modern maths, then we have geometry, right? अगर तुम्हें ये सब आ गया 5-6 चैप्टर्स हैं, ठीक है? इसी के अंदर बाकी सारी चीजें होती हैं, इसी के अंदर होती हैं, ठीक है? अरिथमेटिक के अंदर वी हैव परसेंटेजेस, वी हैव टीएसडी, वी हैव टाइम एंड वर्क, राइट? नंबर सिस्टम्स के अंदर ये 8 मेजर टॉपिक्स है. इसके बाहर अगर कोई तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, एक बार देख लेना क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेना शुड वी रियली गो अहेड एंड अंडरस्टैंड और गेट इनटू इट और नॉट, राइट? Being an aptitude exam, of course, syllabus is vast, and understanding of the syllabus is also vast. So people bring in a lot of perspectives कि ये भी कर लो वो भी कर लो, but there is actually no need, right? तो काफी complex theorems हैं जो IITians पढ़ते हैं अपनी preparation के टाइम पे, right? और जो IITians CAT की तैयारी कर रहे होते हैं वो उसको टच बेस भी करेंगे, वो एक बार इस थ्योरम को देखेंगे भी, बट जिसको नहीं पता वो थ्योरम, आई वुड से एब्सोल्युटली फाइन, राइट? कॉम्प्लेक्स थ्योरम जाने की जरूरत नहीं है. कैट सेज कॉमन एडमिशन टेस्ट, कॉमन जनता के लिए एग्जाम है. इट्स नॉट मैथमेटिक्स हेवी, इट्स नॉट इंग्लिश हेवी, इट हैज टू बी बैलेंस ऑफ ऑल, राइट? पिछले साल से पहले तक 34 क्वेश्चंस आते थे, राइट? क्यूए में इफ यू वुड अटेम्प्ट 24 यू वुड बी 98-99 परसेंटाइल. इससे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें, राइट? 99 इसमें ले आओ, 99 VRC में ले आओ, 99 DA में ले आओ, तुम्हारा 99.5 plus touch कर गया. What else do you want? So you have the scope of leaving questions also. ठीक है? Always understand these MBA exams that you're preparing for, especially CAT, it's not just about attempting the questions. It's also about leaving them. This is also a skill that they test you on, right? As an effective manager, you should know what information to reject, what information, what data to select. Right? So this skill is also tested. That is why 60-65% of the paper, if you attempt all correct, you are a 99 percentiler. Right? Even a 100 percentiler does not attempt more than 80-85. क्योंकि वो है ही नहीं attempt करने लायक उसके बाद questions. Right? ठीक है? So मोटा मोटा ये सारे chapters हैं.
सब चैप्टर्स हैं इस ब्लॉक में, नंबर सिस्टम्स में, एंड वी गोना टच बेस ऑन ईच एंड एवरी चैप्टर टुडे. बिल्कुल हल्का हल्का टच करूंगा, मैं इन सबको इंट्रोडक्शन देके छोड़ दूंगा. My purpose is that I generate that interest in you. That's it. In your mind कि भाई नंबर सिस्टम से डरना नहीं है, QA से एज अ सेक्शन से डरना नहीं है, राइट? आज भावुक सर ने पढ़ाया, so you know, let's watch this recording again probably if need be and go back and start practicing. ठीक है? Let me see if there are any questions. ठीक है, give me a yes sir. Everything is clear. So far so good. And why I'll be seeking responses from you? I also need to be inspired, motivated, encouraged, right? That okay, my students are listening to me. तो मुझे भी थोड़ा रिस्पॉन्स दो. Okay, give me a thumbs up or a yes sir. How's the जोश? शिवम is saying. ये जोश ही चाहिए बेटा लाइफ में और इस कैट एग्जाम के लिए. ठीक है, चलो लेट्स इंट्रोड्यूस नंबर्स टू यू. कोई लिख रहा है थम्स अप. अबे थम्स अप एक आइकन आता है, पूरा THUMBS स्पेस यू पे नहीं लिखना है. ठीक है, चलो 1 सेकेंड. लेट्स इंट्रोड्यूस नंबर्स. ये याद रख लेना, right? And people underestimate this. What I'm going to teach you in next 3-4 minutes, people underestimate this. कहते हैं अरे ये क्या है यार, नंबर सिस्टम्स, हाँ हमें भी पता है रियल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, ये कैसा चैप्टर है? यू नो, नंबर सिस्टम आज भावुक सर ने डिस्कस करना है. जब तक स्क्रीन पे 2 1 3 4 1 2 4 ऐसे नंबर्स नहीं देखेंगे, हम अटेंशन नहीं देंगे, राइट? बिल्कुल भी नहीं. अगर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हें नहीं पता, एंड आई विल शो यू हाउ दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन, एंड ऑल्सो ऑप्शंस विल कंफ्यूज यू, राइट? ऑप्शंस विल कैच यू if you don't have this basic understanding. दो तरह के numbers होते हैं, bigger umbrella. Biggest umbrella of numbers is segregation is real numbers and imaginary numbers, right? अब imaginary numbers क्या होते हैं? Under root के अंदर जब भी minus आ जाता है ना, right? For example, -412, -1, right? ये mathematics में exist नहीं करते हैं numbers, ठीक है? Practically, right? These numbers exist as imaginary numbers. एक iota होता है concept, ठीक है, जो कि आईआईटीएंस पढ़ते हैं, हमने नहीं पढ़ना है. ठीक है, जो कि इंजीनियर्स पढ़ते हैं, जिन्होंने लाइफ में इंजीनियरिंग करनी है, राइट? ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़नी है, मैथमेटिक्स ऑनर्स वो पढ़ते हैं, हमें नहीं करना है इमेजिनरी नंबर्स. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉमन एडमिशन टेस्ट. हमें सिंपल नंबर्स बताओ क्या होते हैं, रियल नंबर्स. तो वी आर गोना फोकस ऑन रियल नंबर्स. रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू, डेसिमल्स एंड इंटीजर्स. इतना सबको पता है. 4.123 डेसिमल आ गया. Number 4 is integer. Number 5 is integer. Number 10,206 is an integer, right? Number 10,206.7 becomes a decimal, right? So these are decimal numbers and these are integers. Integers can be negative integers, that is -3, -7, -10. Integers include 0 also. Integers include positive, और they are called natural numbers. Natural numbers कैसे याद रखना है इसको यार, इतना confusion हो जाएगी. हमें natural numbers भी याद रखो. फिर if natural numbers का set includes 0, it is called whole numbers. The set is called whole numbers, right? ये सब कुछ कैसे याद करना है? Natural numbers कैसे याद करना है? अपने हाथ को देखो, fingers को देखो. How, from which number can you start counting? 1 2 3 4 5 6. Can you count 0 on your fingers? No. So naturally you can start with 1, right? So anything greater than equal to 1 in terms of integers are natural numbers. If you include 0, the set becomes of whole numbers, right? Negative integers separate होते हैं, ठीक है? Let's come to decimals. There are two kinds of decimals: finite decimals, which are terminating decimals, and infinite decimals, which are non-terminating decimals. For example, अगर मैं तुमसे पूछूं what is 4 by not 4 by, let's say 8 by 5. Okay. At the same time, what is 8 by 6? 8 by 5 क्या होता है भाई? 1.6. 8 by 6 क्या होता है भाई? 1.333333. ओके, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है? So these finite decimals, that is 1.6, खत्म. This is where it stops, terminating.
It terminates. This decimal terminates. It's called finite or terminating decimals. Whereas infinite, ये infinite तक चलता रहेगा 0.33333 खत्म नहीं होता है कभी लाइफ में. अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखकर देख लो, पेपर पेंसिल उठा के लिखकर देख लो, खत्म नहीं होता है कभी. ठीक है. So these are non-terminating. They don't terminate ever. Simple English, simple mathematics. Okay. Then natural numbers also include prime numbers जो हम अभी डिस्कस करेंगे, composite numbers और one ना तो prime होता है ना composite होता है. अब ये prime composite क्या होता है भाई? Let's see. Prime numbers होते हैं ऐसे numbers जिनका कोई सगा नहीं होता. ठीक है. उनका कौन सगा होता है? बस एक one जो कि दुनिया में सबका सगा है, और they themselves, the number themselves, number itself. Composite काफी social numbers होते हैं, right? They interact with a lot of numbers, with a lot of factors. So these composite numbers have a lot of factors, right? They can be 1, 2, 3, right? More than 2 factors. इनके कौन सगा है? एक तो 1 सगा है इनका, और ये खुद सगा है. So there are 2 factors here. So prime numbers have 2 factors. Composite numbers have greater than 2 factors. This is the only difference. Is this clear? I'm asking you a question now. Is this clear? Respond to my question. कैट क्वेश्चंस भी करूंगा मैं तुम्हारे साथ. ठीक है. ये मत सोचना कि बहुत ही बेसिक पढ़ाने वाला हूँ या 6th स्टैंडर्ड का मैं क्या पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. मैं बताता हूँ तुम्हें कैट कैसे पकड़ता है तुम्हें. ये देखो, कैट पूछेगा हाउ मेनी होल नंबर्स, हाउ मेनी होल नंबर्स से लेकर आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर देता है. ठीक है. तो बच्चे कहते हैं भाई ये जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है ना, इट्स वेरी इजी, राइट? क्लियरली द आंसर इज गोना बी, फॉर एग्जांपल कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया, राइट? एंड इन होल नंबर्स, इफ यू डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ होल नंबर्स, you would reject the possibility of including zero in this question, right? Sometimes cat will ask how many natural numbers are factors of this, right? You need to understand natural numbers पूछा जा रहा है तो मतलब सिर्फ positive numbers बताने हैं हमें, right? Sometimes cat will say, okay, how many real numbers are factors of this. In that case, you need to understand, you need to consider negative numbers also as factors, zero also as factor, positive natural numbers also as factor, and decimals also as factor, right? So ये basic जो English है, real negative क्या होता है, zero क्या होता है, natural numbers क्या होता है, something that you need to know. Okay, and ये सारे exams जिसके लिए तुम prepare कर रहे हो, and MAT, CAT, SNAP and everything, they all catch you on these nuances. ठीक है. ये screenshot है of some examples, right? Real numbers could be anything. लेकिन अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो वो रियल नंबर नहीं आ जाता, और वहां तक हमने जाना भी नहीं है. हमने आईआईटी की तैयारी थोड़ी करनी है. डेसिमल्स कैन बी इनफाइनाइट डेसिमल्स और फाइनाइट डेसिमल्स. नेगेटिव डेसिमल्स भी होते हैं. फाइनाइट, इनफाइनाइट, इंटीजर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, प्राइम, कॉम्पोजिट. ठीक है. फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो राम. नेक्स्ट, लेट्स सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर्स, राइट? सम आई वुड से कैट की लर्निंग इस स्क्रीनशॉट से मिलेगी तुम्हें. What are the properties of prime numbers? Some properties that you need to kind of memorize. I would say काफी कुछ याद नहीं करना होता है. Everything is based on logic in CAT, right? But there are some, I would say, general knowledge that you know take to CAT exam would be helpful for you, right? For example, एक question पूछा गया था IFT में, right? आज से कुछ 7-8 साल पहले. How many prime numbers exist between 1 and 0? And बच्चे count कर रहे थे, right? 3, 5, 7, 11, 13, 17. आंसर तो निकल गया उनका. वो 2 मिनट लग गए आंसर निकालने में. 2 मिनट के बाद भी आंसर किसी का 26 आया, किसी का 24 आया, राइट? बीच में कभी स्किप हो जाते हैं, राइट? सो यू नीड टू लर्न दिस. दिस इज अ फैक्ट दैट देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100. ठीक है. एंड फॉर अ प्राइम नंबर p greater than equal to 5, कोई भी प्राइम नंबर ले लो greater than equal to 5 से 7, it forms this general form, which is p is equal to 6n plus minus 1. कोई भी प्राइम नंबर ले लो greater than equal to 5. 5 भी ले लेते हैं, चलो. 5 ले लिया, 7 ले लिया, 11 ले लिया, 13 ले लिया.
ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को लेकर करते हैं। इसका मतलब क्या है, एनी प्राइम नंबर दैट इज p से 5 हैज टू बी इक्वल टू 6n प्लस माइनस 1। इसका मतलब तुम 5 को जब 6 से डिवाइड करोगे, द रिमाइंडर विल बी आइदर +1 और विल बी -1। -1 रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ, डिवाइडर से -1 कर दो। ठीक है, चलो 5 को डिवाइड करते हैं 6 से, रिमाइंडर क्या आता है 5। 5 इज अ रिमाइंडर, लेकिन भाई यहाँ पे तो कह रहा है तो +1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए। लेट्स सी -1 का मतलब क्या होता है। 6 डिवाइजर क्या है हमारा 6, इसमें से -1 करो, रिमाइंडर क्या हुआ हमारा -1, राइट। So -1 is also remainder here. Let's take 7. 7 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आता है +1। 11 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आता है -1। 13 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आता है +1। 17 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आता है -1। 19 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या होता है +1 एंड सो ऑन। कोई भी प्राइम नंबर ले लो इस दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है, राइट, उसको 6 से जब तुम डिवाइड करोगे, उसका रिमाइंडर या तो +1 होगा या -1 होगा। इतनी बात सबको समझ में आई? एनी डाउट्स एनीबॉडी? बेसिक चीज है ये, राइट, बट वी टेंड टू इग्नोर बिकॉज हमें इतनी मोटी बुक पढ़नी है। जब हम कैट की तैयारी शुरू करते हैं, इतनी मोटी बुक हमें दिख जाती है। ये छोटी मोटी चीजें पढ़ने का टाइम थोड़ी है किसी के पास। सीधा LOD 2 पे पहुंचो, सीधा पास ईयर कैट क्वेश्चंस देखो, राइट। और हम मार्क्स खा जाते हैं कैट एग्जाम में, हमारा स्कोर आता नहीं 80 से ऊपर किसी मॉक टेस्ट में, राइट। इसी रीजन की वजह से बेसिक्स हमने पढ़े नहीं होते। गाइस, इज दिस क्लियर? यस सर, गिव मी यस सर। General form of a prime number. Okay, cool. At the same time, for any prime number greater than equal to 5, p is nothing यार। p का मतलब है कोई प्राइम नंबर संयुक्ता। कोई भी प्राइम नंबर ले लो, p का मतलब है 7 9, सॉरी नॉट 9, 7 11 13 17 19। वो इतने सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो इसलिए इनको मैं p से डिनोट कर रहा हूँ, दैट्स इट। p से कंफ्यूज मत होइए। वेरिएबल्स से मुझे पता है लोगों को जो इंजीनियर्स नहीं है उनको बहुत डर लगता है कि यार हर चीज को तुम इंजीनियर x मान लेते हो, राइट, हर चीज को p मान लेते हो, ये क्या बात हुई। नंबर्स में बात कर लो तो शायद हमें तब भी समझ में आए नॉन इंजीनियर्स को, लेकिन तुम्हारी आदत होती है ओके टोटल को x मान लेते हैं, कभी इसको x मान लेते हो तुम, राइट। ये कंप्लेंट सुनी है मैंने नॉन इंजीनियर से। घबराने की जरूरत नहीं है यार, ये जस्ट अ वे ऑफ काइंड ऑफ इजी टू मेक माई लाइफ इजी, दैट्स इट। लाइकवाइज कोई भी प्राइम नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का अगर आप स्क्वायर करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्राइम नंबर्स ले लो, 5 7 11 13 एंड 17 एंड सो ऑन। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म क्या है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 24n+1। नॉन इंजीनियर्स डरना मत इसको देखकर, आई गोना एक्सप्लेन टू यू व्हाट दिस मींस। इसका मतलब क्या है, किसी भी प्राइम नंबर को उठा लो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, उसको जब तुम स्क्वायर करोगे उसका, राइट, उसको जब खुद से मल्टीप्लाई करोगे और जब 24 से डिवाइड करोगे, तो उसका रिमाइंडर आएगा हमेशा 1। करके देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर है 25 डिवाइडेड बाय 24, रिमाइंडर इज 1। 7 का स्क्वायर इज 49 डिवाइडेड बाय 24, 24 into 2 48, राइट, रिमाइंडर बच गया +1। 11 का स्क्वायर 121 डिवाइडेड बाय 24, 24 into 5 is 120, रिमाइंडर इज 1। 13 का स्क्वायर is 169 divided by 24, 24 7 times would be 168, remainder will be 1 and so on। कोई भी दुनिया में प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर करो और 24 से डिवाइड करो, रिमाइंडर हमेशा 1 बचता है। लाइकवाइज कोई भी प्राइम नंबर लो, उसका स्क्वायर करो, उसे 12 से डिवाइड करो, तब भी रिमाइंडर 1 बचता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। इतना अगर प्राइम नंबर के बारे में समझ में आ गया ना, कैट में और कुछ नहीं चाहिए प्राइम नंबर्स के बारे में तुम्हें। ठीक है, इससे काफी सारी चीजें से ड्राइव हो जाती हैं, बट ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइम नंबर्स होते क्या है। 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से 100 के बीच में, एंड ये सारी जनरल फॉर्म्स होती हैं प्राइम नंबर्स की। गिव मी अ यस इफ यू अंडरस्टूड दिस। वो जगह हेल्प करता है भाई, कैट के क्वेश्चन में हेल्प करता है ये।
ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन आया था to check if a number is prime or not, something around these lines, right? Now see, जो अभी हमने पढ़ा, right? ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया एग्जाम में, अरे एक प्राइम नंबर है हमारे पास 19, बताओ जी ये 24 से डिवाइड होने पे कितना रिमाइंडर देता है। अबे कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तुम, राइट? ये तो 6-7 में पूछा जाएगा। फिर हमने क्यों पढ़ा ये सब कुछ, ये हम क्यों बात करें जनरल फॉर्म की? बिकॉज दिस इज यूज्ड in the questions, right? So whatever you're learning here, these become your tools, right? Always remember, this is not a question itself. This is one of the tools to solve a question, right? This will be one of the learnings to solve a question. That's it. Okay? Let's see how to check if a number is prime, right? कभी किसी ने सीखा होगा, कभी किसी ने नहीं सीखा होगा, बट अभी देखेंगे नेक्स्ट 5 मिनट में तुम्हें समझ में आ जाएगा। कोई भी नंबर तुम्हें मिल जाए, राइट, चेक करना है तुम्हें वो प्राइम है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? पहली बात, उसकी स्क्वायर रूट को लेने की कोशिश करो, राइट? अब तुम बोलोगे यार क्या मजाक कर रहे हो यार, 123 का स्क्वायर रूट कैसे ले सकते हैं, होता ही नहीं 123 किसी का स्क्वायर। तो आगे क्या लिखे है? अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करो। 123 स्क्वायर रूट नहीं होता, कोई बात नहीं। क्लोजेस्ट स्क्वायर क्या है? 123 स्क्वायर नहीं होता, कोई बात नहीं। इसका क्लोजेस्ट स्क्वायर क्या है इसके पास? 121, सबने पढ़ा। 11 स्क्वायर इज 121, ठीक है? क्लोजेस्ट स्क्वायर इज 121। तो अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट स्क्वायर ले लो जो तुम्हें नंबर दिया गया उसका, immediate lower integer, immediate lower square. Now second step, check the divisibility of this number 121, 123 by all the prime numbers less than the square root of 121. तो क्या किया हमने? क्वेश्चन कह रहा है 123 बताओ भाई प्राइम नंबर है कि नहीं। मैंने क्या किया, तो स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करी मैंने 123 की। नहीं होता भाई 123 का स्क्वायर रूट, और होता भी है तो इट्स नॉट अ इंटीजर नंबर, राइट? डेसिमल नंबर आएगा, हमें नहीं चाहिए डेसिमल नंबर, राइट? हम इंटीग्रल में बात कर रहे हैं। तो 121 इज द क्लोजेस्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 11। स्टेप 2 क्या कह रहा है? चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 123 बाय ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 11। लेस देन 11 कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं? 2, 3, 5, 7। 123 चेक कर लो, क्या ये 2 से डिवाइड होता है? क्या ये 3 से डिवाइड होता है? क्या ये 5 से डिवाइड होता है? या क्या ये 7 से डिवाइड होता है? अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड होता है तो ये नंबर प्राइम नहीं है। अगर ये किसी में से डिवाइड नहीं होता, 2, 3, 5, 7 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो यू कैन क्लियरली से दैट दिस नंबर इज प्राइम। यू डोंट हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर आफ्टर बियॉन्ड 7. You don't have to check it with 11. You don't have to check it with 13. You don't have to check it with 17, 19 and so on. यही करते हैं जब कोई नंबर हमें निकालना होता है वो डिविजिबल है कि नहीं, प्राइम है कि नहीं, यूजुअली। बट अब हमें एक नया तरीका पता चल गया। क्या करना है? क्लोजेस्ट स्क्वायर निकालना है इसका, जो नंबर गिवन है 121, इसका स्क्वायर रूट कर देना है 121 का, क्लियरली 11। 11 से नीचे जितने प्राइम नंबर्स हैं लिख देने हैं, 2, 3, 5, 7। अब 123 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाय 2, 3, 5 और 7, दैट्स इट। Now we say 123 is not prime. क्यों भाई? Because it is divisible by 3. Therefore, it is not prime is the answer. Guys, clear? Yes or no? बेसिक्स मैं बता रहा हूँ मैं, नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ताकि आगे जब इसके ऊपर जब तुम अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड करो तो घबराहट ना हो, टेंशन ना हो तुम्हें कि यार हम सीख क्या रहे हैं लाइफ में। स्पेशली नॉन इंजीनियर्स जिनकी हालत टाइट हो गई होगी ये एक को देखकर ही कि भाई ये एक है। एक सर ने बोला 123, ये रूट भी हमें समझ में आता है, ये सिंबल रूट का, लेकिन ये एक है भाई, राइट? तो नॉन इंजीनियर्स के लिए बता रहा हूँ मैं कैसे सोचना है। इवन इंजीनियर्स वेरिएबल से खेलना बंद कर दो, राइट? कैट इज नॉट अबाउट वेरिएबल्स, कैट इज नॉट अबाउट मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स का पेपर होता कैट तो कैलकुलेटर नहीं देता तुम्हें। कैट को रियलाइज हुआ कि भैया लोग कैट को मैथमेटिक्स हेवी समझते हैं, राइट? ये लो कैलकुलेटर, अब प्रूव करके दिखाओ ये मैथमेटिक्स हेवी है। अब तुम ले आओगे 99 परसेंटाइल अगर ये मैथमेटिक्स हेवी था। लॉजिक हेवी है कैट, right? And they have proved it by giving you this calculator. Ram is saying non-engineers are not that afraid of variables. I won't generalize, right? मैंने अपने 5 साल के एक्सपीरियंस में बहुत धुरंधर नॉन इंजीनियर्स देखे हैं, इवन इंजीनियर्स जो कि वेरिएबल्स देखकर घबरा जाते हैं लाइफ में, ठीक है? मैं ऐसे नॉन इंजीनियर्स को जानता हूँ अपने लाइफ में, those scored 99
इन VARC, ठीक है, और 45 इन QA। कहीं तो कमी थी भाई। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई थी वो लड़की मेरी फ्रेंड, और चारों रॉन्ग, एक सही हुआ होगा, राइट। और VARC में 99 आया था उसका, राइट। So I won't generalize, जैसे I cannot generalize कि they are afraid of variables, I cannot generalize they are not afraid of variables, right? There's a mix of both for sure, but I'm addressing those who are, right? I'm addressing those also who are engineers and still fear variables. Point is, variables की जरूरत है नहीं ज़्यादा। चलो, questions ये homework कर लेना, I'm not solving these with you. Take a screenshot of this if need be, या कोई भी random number उठाओ अपनी life में और उसको कोशिश करो देखने की कि प्राइम है कि नहीं। चलो, let's solve a cat question now, right? ये जो हमने अभी अंडरस्टैंडिंग लिया है, क्या लिया हमने अंडरस्टैंडिंग? कुछ भी नहीं। रियल, प्राइम, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स कैसे निकालते हैं, प्राइम है कि नहीं, इसके बेसिस पे, इस लर्निंग के बेसिस पे कैट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इट सेज लेट S be a set of prime numbers greater than or equal to 2 and less than 100. Multiply all the elements of S with how many consecutive zeros will this product end? आंसर कर दो, 10 सेकंड का सवाल है। राम, who doesn't fear variables, तुम्हारे लिए भी 10 सेकंड का सवाल होना चाहिए। वेरिएबल यूज कर लो तुम, चाहे ना यूज करो, ये सवाल 10 सेकंड से ज्यादा लेना नहीं चाहिए for someone who is preparing for a 98+ percentile in CAT. और अगर नहीं आता इसका लॉजिक तो तुम अभी क्या कर रहे होगे? 2, 3, 5, 7, 11, ओ तेरी भाई, ये तो मतलब 100 तक कह रहा है, राइट। कैट का क्वेश्चन है भाई ये तो, राइट। कैसे जाए 100 तक? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए इसमें। चल कैलकुलेटर निकालते हैं, राइट। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है भाई, लाइफ में कैलकुलेटर निकालते हैं, राइट। ये क्वेश्चन ही छोड़ूंगा मैं कैट में, राइट। जबकि है ये 10 सेकंड का सवाल, 10 सेकंड इंक्लूडिंग द रीडिंग टाइम एंड इंटरप्रेटिंग इट एंड वैलिडेटिंग इफ इट इज करेक्टली read or not. Waiting for your responses guys, quickly. Let's make it an engaging class यार, मुझे भी मजा आए। प्लीज रिस्पॉन्ड। किसी को नहीं आ रहा समझ में, प्लीज गिव मी अ थम्स डाउन और से सर नहीं समझ में आ रहा, सर आई डोंट नो, राइट। इट्स जून एंड दिस इज नंबर सिस्टम्स, यू आर स्टिल किकिंग ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर कैट, राइट। एंड जिस दिन लाइफ में डर हटा दोगे कि यार हम बताएं ना बताएं किसी को कि हमें समझ में आ रहा नहीं आ रहा, दूसरा बंदा क्या सोचेगा, तभी आएगा, तभी आगे 99 तक पहुंच पाओगे। अगर यही सोचते रहोगे कि यार ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, सर क्या सोचेंगे, हमें ये नहीं आता, सिंपल सा क्वेश्चन कह रहे हैं सर, तो भाई कुछ नहीं होगा। फिर यही मेंटालिटी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में भी रहेगी। फिर नहीं आ रहा निशांत, कोई बात नहीं। ठीक है, संयुक्त कह रहा 24। चलो देखते हैं। प्राइम नंबर्स है भाई 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। बेसिक नंबर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम। 17, ये तो 100 तक है भाई, मैं नहीं जा रहा 100 तक, राइट। कौन लिखेगा, इतनी मेहनत कौन करेगा, राइट। शिवम सॉल्व तो करने दे, आंसर बताऊं पहले तेरे को मैं, सॉल्व कर लूं। आंसर है 1, ठीक है। अब देखेगा नहीं अब सॉल्यूशन मेरा, चलो तेरा सही है, बहुत बढ़िया भाई। चलो लेट्स सी, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, देयर इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर, ये शायद मैं स्किप कर दिया, बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं, राइट। भाई बात बताओ, तुम कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, लास्ट में जीरो कैसे आता है? लास्ट में जीरो कैसे आता है? एक 2 को और एक 5 को मल्टीप्लाई करके, इसके साथ आप कुछ भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई कर दो, इवन नंबर मल्टीप्लाई कर दो, राइट। लास्ट में हमेशा जीरो ही रहेगा, 7, 11, 19 एंड सो ऑन, राइट। जैसे 24 इवन नंबर भी ले लो यहाँ पे, 26 एंड सो ऑन। जब तक एक 2 और 5 नहीं आता मेरे इस मल्टीप्लीकेशन में, तब तक जीरो बनता ही नहीं है, राइट। कैलकुलेटर उठाकर देख लेना, ये सारा सॉल्व करके देख लेना, या ये अंडरस्टैंडिंग जो मैं समझा रहा हूँ इसको समझ लेना, और छोटे छोटे नंबर्स उठाकर देख लेना। जब तक एक 2 नहीं आता एक मल्टीप्लीकेशन में और एक 5 नहीं आता एक मल्टीप्लीकेशन में, तब तक उस नंबर के एंड में जीरो नहीं आता है। और कितने जीरोस आते हैं? दे डिपेंड ऑन नंबर ऑफ 2s एंड नंबर ऑफ 5s, पेयर्स ऑफ 2s एंड 5s। इस केस में मैंने देखा, एक तो भाई
एक इवन नंबर चाहिए मेरे को कम से कम, और एक 5 चाहिए मेरे को लास्ट में 0 लाने के लिए, राइट। इस प्राइम नंबर के सेट में सारे प्राइम नंबर्स मैंने लिख डाले, राइट। एक इवन नंबर है 2, और कोई इवन नंबर आएगा नहीं प्राइम नंबर के सेट में, क्योंकि अगर वो इवन होगा तो वो डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, तो वो कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा, है ना। तो एक ही 2 है और एक ही 5 है, और कोई 5 का मल्टीप्लीकेशन 5 का मल्टीप्लायर भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर कोई 5 का मल्टीप्लायर ले आया मैं 25 या 35 या 75, वो 5 से डिवाइड होता है, तो वो भी कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो प्राइम नंबर जो आगे मैं सारे देख रहा हूँ, ये सारे बकवास है मेरे लिए, इसकी जरूरत ही नहीं है मेरे को। कुछ भी नंबर उठा लो तुम इसके आगे, राइट। मुझे किन पे फोकस करना है? मुझे सिर्फ 2 और 5 पे फोकस करना था। 10 कैसे बनता है? 2 और 5 से। 0 कैसे बनता है एक नंबर के एंड में? 2 और 5 से। कितने 2 और 5 है? एक 2 है, एक 5 है, आंसर विल बी 1 0। क्या लर्निंग चाहिए थी इसके लिए? बेसिक्स एंड नंबर्स के। एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए, लास्ट में 0 लाने के लिए। इज दिस क्लियर गाइस? क्या 2000 का सवाल था ये? गिव मी अ यस सर, यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट एक 2016 का सवाल लेते हैं। पूरा सॉल्व नहीं करूंगा मैं इसको, आई जस्ट शो यू कि ये रीसेंट कैट में भी कैसे बेसिक्स ऑफ नंबर्स लिए जाते हैं, राइट। हाउ कुड यू हैव eliminated 2 options just by reading this, just after reading this question, and also with the only understanding that I've given you so far. Let's see. 4 consecutive prime numbers are arranged in ascending order. Consecutive का मतलब है, for example 3, 5, 7, 11, right? Consecutive है ये, इनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं आता, तो इनको अरेंज करा गया असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा पहले बड़ा बाद में, ठीक है। The product of the first 3 numbers is 7429 and that of the last 3 numbers is 1263. Find the sum of the first and the last numbers. ठीक है, एक बार पढ़ो तुम सवाल को अपने आप और दिमाग चलाओ अपना थोड़ा सा, ठीक है। I'll give you a few seconds, एक बार पढ़ लो अच्छे से, and I'll not solve this question पूरा जैसे मैंने तुम्हें बताया, right? I'll eliminate 2 options just after reading this question. मतलब ये 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाने चाहिए थे ये पढ़ के, और जो अंडरस्टैंडिंग अभी तुमने ली है मुझसे पिछले 15-20 मिनट में। तो बता सकते कौन से ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे? क्योंकि इंट्रोडक्शन है नंबर्स का, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स, इनटू द डेप्थ ऑफ एवरीथिंग। आई जस्ट इंट्रोड्यूस कि भाई ये देखो, दिस इज व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, दिस इज व्हाट यू हैव टू गेट इनटू। चलो लेट्स सी। कह रहा भाई 4 प्राइम नंबर्स हैं, अब नॉन इंजीनियर्स के लिए, इवन इंजीनियर्स हु fear वेरिएबल्स, मैं वेरिएबल यूज नहीं करूंगा, PQRS, ठीक है। मैं सिंपली बोलूंगा कोई भी 4 नंबर्स, 4 वेरिएबल्स, सॉरी 4 प्राइम नंबर्स ले लो, राइट। मैंने ले लिए 11, 13, 17, 19। क्यों लिए? मेरी मर्जी, तुम कुछ भी ले लो, तुम कुछ और ले लो, डजंट मैटर, ठीक है। तुम 3, 5, 7 से खुश हो तो ये ले लेते हैं, ठीक है। अभी कह रहा है इनका प्रोडक्ट है भाई, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स इज 7429। इसका मतलब है प्राइम नंबर की लिस्ट में सिर्फ एक प्राइम नंबर होता है, दैट इज इवन, विच इज 2, राइट। अगर मैं कंसेक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग 2 लिखता, क्यों नहीं लिया मैंने 2, 3, 5, 7? चेक दिस आउट। तो पहली बात, ये प्रोडक्ट बनाकर मेरे को इतना बड़ा नंबर तो नहीं दे पाते। तो मुझे पता है कि ये जो प्राइम नंबर्स, 4 प्राइम नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये थोड़े तो बड़े हैं भाई 2, 3, 5, 7 से, है ना। और ये मल्टीप्लाई होके भी इवन नंबर देते हैं, बिकॉज एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय इवन नंबर ऑलवेज गिव्स यू एन इवन नंबर, ठीक है। तुम्हारे पास 1000 नंबर्स हैं, सारे ऑड, right? 999 of them are odd and there is one even number, say 24. तो पूरे प्रोडक्ट का आंसर will be even number. Again, basics of numbers, ठीक है। इस केस में वो कह रहे हैं फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 7429 आता है, तो डेफिनेटली 2 तो नहीं है इस लिस्ट में। इस लिस्ट में सारे और प्राइम नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, मुझे नहीं पता इसे ये कि नहीं, मुझे पता है ये सारे और प्राइम नंबर्स है मेरे पास।
ये मल्टीप्लाई होकर मेरे को 3 मल्टीप्लाई होकर पहले 3 मल्टीप्लाई होकर 7429 देते हैं, लास्ट 3 मल्टीप्लाई होकर 12673 देते हैं। ठीक है, पूछा क्या गया, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर्स। अब मुझे इतना पता चल गया कि ये सारे जो प्राइम नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ आर ऑड। ये मेरी पहली लर्निंग है इस क्वेश्चन से, पहला आई वुड से कंक्लूजन है इस क्वेश्चन से, इन्फ्रेंस है इस क्वेश्चन से, जो भी। ठीक है, तो इसमें पूछा है सम ऑफ द फर्स्ट प्राइम नंबर जो कि ऑड होगा एंड द लास्ट प्राइम नंबर फिर से ऑड होगा, वो मुझे निकालना है। वन ऑड नंबर व्हेन एडेड टू अनदर ऑड नंबर, आंसर क्या होता है, इवन या ऑड? जल्दी से जल्दी बताओ। When an odd number is added to another odd number, answer is always even number. So from the options, I'm expecting the answer to be an even number. A can be my answer. 39 cannot be my answer. 46 can be my answer. 45 cannot be my answer. दो options eliminate हो गए. Answers can be either of 36 or 45. ठीक है, ये कैसे सॉल्व करेंगे बाद में डिस्कस करेंगे कभी और किसी दिन। ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग से जो हमने अभी पिछले 15-20 मिनट पढ़ा, तुमने कैट 2016 के दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए। इज दिस क्लियर गाइस? यस और नो? पर्पस मेरा तुम्हें इस चैप्टर से, इस कॉन्सेप्ट से प्यार कराना है, राइट? प्यार हो जाए तुम्हें 1.5 घंटे बाद, राइट? अंधा प्यार ना हो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्यार जनरेट हो जाए तुम्हारे दिल में कि भाई क्या चैप्टर था ये, राइट? आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या है। ठीक है, गिव मी यस और नो गाइस। आई एम नॉट रिसीविंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज हियर। सो रहे हो क्या सारे? नहीं सो रहे तो बेटा जवाब दो। चलो बढ़िया, let's move on to another. Also, this was the second discussion topic, divisibility rule. ठीक है, हमारे पास कितना टाइम है अभी? चलो ओके, I'll structure my next 45 minutes accordingly. By divisibility rule, by 2 or 5, by 3, by 4, by 6, by 8, by 11, आगे जाने की जरूरत नहीं है, सारे डेरिवेशन है इसके। ठीक है, कैसे चेक करते हैं कि एक नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं? इवन होना चाहिए, अगर इवन है तो यस, ऑड है तो नो। ठीक है, किसमें पढ़ा था? 5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। How do you know if a number is divisible by 5? लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। If a number is divisible by 3, सब डिजिट्स को ऐड कर लो, अगर उसका sum is divisible by 3, the whole number is divisible by 3. How do you check if a number is divisible by 4? Last 2 digits उठा लो। For example, it is 105486, तो तुमने चेक करना है if it is divisible by 4. लास्ट 2 digits से तुम्हें मतलब है, और किसी नंबर से किसी डिजिट से मतलब नहीं है तुम्हें। ये 86 जो number thus formed, if it is divisible by 4, the whole number will be divisible by 4. How do you check if a number is divisible by 6? अगर वो 2 से भी divisible है और 3 से भी divisible है तो 6 से भी divisible होगा। How do you check if a number is divisible by 8? Last 3 digits उठा लो उसके। Last 3 digits, the number thus formed by last 3 digits, if it is divisible by 8, the whole number will be divisible by 8. How do you check if a number is divisible by 11? कोई भी नंबर उठा लो, 1 2 3 4 5 6 एक नंबर है, राइट हैंड साइड से चलो, ऑड इस डिजिट्स को ऐड कर लो, 6 + 4 + 2 is what? 12. सबट्रैक्ट कर दो किससे? इवन डिजिट में जो नंबर, इवन पोजीशंस में जो नंबर्स हैं उनका सम से। 5 + 3 + 1 is 9. 12 - 9 3 होता है। If this number is divisible by 11, the whole number will be divisible by 11. या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, सिंपल इंट्रोडक्शन, राइट? ये कुछ होमवर्क है, कर लेना कभी मन करे तो लाइफ में। Let's talk about the third topic now. HCF और GCD, highest common factor और greatest common divisor. तुमसे पूछा गया स्कूल में 7th स्टैंडर्ड में कि भाई HCF निकालो, तुम्हें आज टीचर सिखाएगी HCF, how to find an HCF, how to find the HCF of these two numbers 150 and 500. तुमने क्या किया? ये बहुत ही बढ़िया शानदार सा फैक्टराइजेशन कर दी तुमने। 150 की फैक्टराइजेशन करके क्या आता है?
3 into 5 into 5 into 2, 500 को करके क्या आता है 5 into 5 into 5 into 2 into 2, राइट। बड़ा मजा आता था बचपन में करके, ये पेयर्स बनाने होते थे, राइट। थोड़ा ड्राइंग आ जाती थी इसमें तो आई वुड एंजॉय इट, राइट। ये 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, एक और 5 का पेयर बन गया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 into 5 into 2 कितना होता है 50। इसका मतलब 150 और 500 का HCF क्या होता है 50। बहुत बढ़िया, ये लर्निंग लेकर तुम आ गए अब कैट में, ये भी जरूरी है, ये भी लर्निंग। अब मैंने बोला चलो भाई अब निकालो HCF, कैट थोड़ी पूछेगा 150 और 500 का, बताओ भाई HCF क्या है, ऑप्शन देगा 50, 25, 5, ऐसा थोड़ी आता है, राइट। कैट में आ गया HCF में, HCF कह रहा हूँ IFT में क्वेश्चन आ गया, find the HCF of 24, 360, 480, 960, 1024, 2048। ठीक है, जो बच्चा सीख कर आया था HCF और जो जिसको लग रहा था ये कैट और ये एग्जाम तो हलवा है, राइट, हमने क्या करना है HCF, उसने देखा बुक खोल के, अरे भाई HCF तो आता है मेरे को, LCM तो आता है मेरे को, डिविजिबिलिटी रूल्स अरे सब आता है मेरे को, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कौन पढ़ेगा क्या होते हैं, ऑब्वियसली 1 2 3 4 सारे नंबर्स होते हैं, राइट। बेसिक्स करके ज्ञानी नंबर सिस्टम्स को हल्के में ले लिया, राइट, और ये आ गया क्वेश्चन अब एग्जाम में। ठीक है, अब वो कहेगा यार आता तो है मेरे को HCF निकालना, कैसे निकालते हैं, 24 को फैक्टराइज कर दो भाई, 2 into 2 into 3, फिर 360 को फैक्टराइज करो, 2 into and so on, फिर वो बैठ जाएगा पेयर बनाने, राइट। निकलेगा नहीं आंसर उससे, राइट। निकल भी कर गया तो 15-20 मिनट ले लिया उसने, 15-20 मिनट बहुत ही मतलब अच्छी बात कर रहा हूं मैं, हाईली अनलाइकली। ठीक है, तो देयर हैज टू बी सम वे, IFT has asked this question, why has IFT asked this question, अगर ये इतना ही पकाने वाला क्वेश्चन है तो, इतना थकाने वाला क्वेश्चन है तो, right, we'll see how to solve this question, how to find HCF with a thought process for cat. ठीक है, shortcut for cat, thought process for cat is an important concept. Always remember HCF is a factor of difference between any pair. इसका मतलब क्या है कि भाई you have a set of 1 2 3 4 5 6, इन सबका अगर तुमने जब HCF निकालना है, take any two numbers, okay, say 2048 and 360. This is the first step. I'm teaching you a shortcut, guys. ठीक है, take any two numbers. Second step, find the difference between the two. Difference between the two. ठीक है, जो भी नंबर आएगा डिफरेंस लेके उसको फैक्टराइज कर दो, सिर्फ उस नंबर को फैक्टराइज करो। चेक दिस आउट, मेहनत कैसे बचा रहे हैं। स्कूल मेथड था 24 को भी फैक्टराइज करो, 360 को भी, 480, 960 and everything has to be factorized. But the method I'm teaching you, you have to only factorize the difference between any two numbers. ठीक है, for example, it turns out to be 2 into 3 into 3 into 5 into 6, whatever, I don't know, into 7, whatever. Okay, right? ये factorize भी नहीं करना, just find out all the factors of this difference of this number, right? And start with the highest factor. If that highest factor is dividing all these numbers, then that is the HCF. Let's see what I mean. Step 1 was take any two numbers, मैंने ले लिया 360 and 24. Others you can take 2048 and 24 also. You can take 2048 and 1024 also. Any two numbers from that list, right? But a smart person or smart candidate, what will that smart candidate do? The difference ही लेना है, right? Let me take those two numbers that have the least difference. मेहनत कम लगेगी, right? Let me take 960 and 1024. They are very close to each other. The difference is also going to be, I mean, it's very easy to find out, right? What is the difference? 64 is the difference. Okay, that is what a smart candidate is going to be doing. This is all 64. Okay, so I took the closest numbers in this set. Okay, this was the second step. Third step, find out all the factors of 64. Don't refer to this is wrong. All the factors of 64. कैसे निकालते हैं all the factors of 64? 1 into 64, 2 into 32, 4 into 16, 8 into 8. Guys, is this clear? These are all the factors of 64. 64 is a factor of 64, 32 is a factor of 64, 16 is a factor of 64, 8 is a factor of 64, 4 is a factor of 64,
2 is a factor of 64, and of course 1 is, right? So there are how many? 7 factors of 64. यहां तक सबको समझ में आया? This is the CAT method of finding out the HCF. Okay, अब क्या निकालना है हमने? Highest common factor, right? So we'll start with the highest factor of 64, which is 64 itself. 64 को उठाओ and divide the first number in the set. First number in the set क्या है मेरा? 24. Divide 24 by 64. Is the remainder 0? No. So 64 is not the HCF of all these numbers. Then take the next number, next highest number, which is 32. Divide the first number by 32. Is the remainder 0? No. That means none of this. I mean, 32 is not the HCF of this series. Take the next highest number, which is 16. 16 is the next factor. Divide 24 by 16. Is 24 completely divisible by 16? No. Therefore, 16 is not the HCF of all these numbers. Now take 8. Next highest factor. Divide 24 by 8. What is the remainder? 0. Divide 360 by 8. What is the remainder? 0. Divide 480 by 8. What is the remainder? 0. Divide 960 by 8. What is the remainder? 0. 1024 by 8. What is the remainder? 0. 2048 by 8. Remainder 0. 8 divides all these numbers. Therefore, 8 is the HCF of this series of numbers. Guys, is this clear? किसी को नहीं भी आया ना, तो I would say watch this recording again. Right? Again, as I said, my purpose is not to teach all these concepts to you, but just introduce these concepts to you. इस क्लास के बाद तुम्हें थोड़ा हल्का लगने लगे. You know, CAT is not that difficult. It's all logical. Give me a yes, sir, guys. Clearly, I am not receiving a lot of responses here. Clearly, people are sleeping in the class. चलो. Next, LCM. 120 and 385 का LCM अगर तुम्हें स्कूल में निकालना होता था तो तुम ये करते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये कुछ बना लेते थे मैट्रिक्स, राइट? 120 और 385 बहुत बढ़िया. 5 हमें दिख रहा है कॉमन फैक्टर. चलो 5 24 जा 120, 5 77 जा 385. ओके, अब 24 और 77 में कुछ कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है, तो फिर इंडिविजुअली करना पड़ेगा. 7 11 जा 77, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, एंड सो ऑन. दिस वाज हाउ वी सॉल्व्ड इन स्कूल. And surprise, surprise, this is the way you'll have to solve even today, right? There is no shortcut of finding out the LCM. Okay, so LCM is the same way. It's just that you should know what LCM is and how to find it out. Next, this is not something you must have learned in school. HCF and LCM of fractions. Again, relevant to CAT. Okay. HCF and LCM of fractions. ये क्वेश्चन देखना, ये घड़ी वाले क्वेश्चंस होते हैं, राइट? या वो घंटी वाले क्वेश्चन होते हैं. बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं. कैट में हर साल आता है यार, इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो. ठीक है, क्या दिया होता है कि भाई एक मंदिर में घंटी बजी थी, घंटी बजती है 2 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, मतलब 5 घंटी है. एक घंटी बजती है 5 सेकंड बाद, फिर एक 6 सेकंड बाद, और फिर एक 10 सेकंड बाद, राइट? 12 बजे सारी घंटियां इकट्ठे बजना शुरू हुई. अब बताओ नेक्स्ट टाइम ये सारी घंटियां फिर से इकट्ठे कैसे बजेंगी, राइट? इसमें एलसीएम निकालना होता है, राइट? बट ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होते हैं इसमें फ्रैक्शंस का भी एचसीएफ एलसीएम निकालना होता है. सो दिस इज नॉट लाइक परफेक्ट एग्जांपल फॉर फ्रैक्शंस एचसीएफ एलसीएम, बट एलसीएम का एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं तुम्हें, जो भी घंटी वाला देखा. ठीक है, वैसे ही अभी इसका एक एप्लीकेशन दिखाऊंगा, कैट क्वेश्चन दिखाऊंगा. ठीक है, अभी के लिए लेट्स सी हाउ टू फाइंड आउट एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस. तुम्हारे पास अगर 4 इंटीजर्स दिए जाते तो तुम आराम से निकाल लेते उसका एचसीएफ एलसीएम, अभी हमने सीखा. लेकिन अगर 4 फ्रैक्शंस दिए जाते, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, ठीक है, इसका तुमने अगर एचसीएफ निकालना है भाई, कैसे निकालोगे? जिसने नहीं पढ़ा, अगेन जिसने नंबर सिस्टम की बुक खोली तो थी, लेकिन सबने बोला अरिथमेटिक कर भाई, अरिथमेटिक में से 15 सवाल आते हैं. अलजेब्रा कर, उसके बाद अलजेब्रा में इतने सवाल आते हैं. अब ज्योमेट्री कर ले, 5 सवाल आते हैं, राइट? अब पीएनसी कर ले, कर तो लिया उसने सारे, लेकिन ये जो इजी नंबर थे +3 आ जाता ये सवाल करके एग्जाम में, वो करके नहीं गया वो कॉन्सेप्ट, राइट? मुश्किल कॉन्सेप्ट कर गया, ठीक है, कर भी लिया, राइट?
लेकिन तब भी 98 99 नहीं आया, बिकॉज अगर इजी लेवल नहीं कर रहे तुम एग्जाम में, डिफिकल्ट लेवल कर रहे हो जिसमें टाइम बहुत लग रहा है, राइट, सो यू कैन नो वेयर रीच क्लोज टू 97 98 इन कैट. ठीक है, the strategy should be solving all the easy level questions first, then medium level questions, and then think about solving difficult level questions if you have time. अगर तुमने सारे इजी और मीडियम लेवल कर लिए, यू आर 91 परसेंटाइल इजीली इन कैट. ठीक है, लेट्स सी HCF ऑफ 2 or more fractions कैसे निकालेंगे? Simply find out the HCF of numerators, divide them by the LCM of denominators. For example, इस example में मिटा के दिया मैंने 4 by 5, 5 by 6, 6 by 8, 6 by 7, 8 by 9. ये तुम्हारा फ्रैक्शन है, तुमने कुछ नहीं करना. अगर सवाल पूछ रहा है फाइंड द HCF ऑफ ऑल दी फ्रैक्शंस, ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड द HCF ऑफ 4, 5, 6, 8 and divided by the LCM of 5, 6, 7, 9. ठीक है, बट इसका एक प्रेमिस होता है, राइट, विच इज these fractions should be in the lowest form. इसका मतलब क्या है? अगर 10 by 8 एक फ्रैक्शन है तो उसको तुम एज इज कंसीडर नहीं कर सकते हो, इसको लोएस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा कि भाई अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कटेंगे नहीं, तो लोएस्ट फॉर्म में लाना होता है फ्रैक्शन. उसके बाद यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. गाइस, इज दिस क्लियर? लेट्स चेक दिस आउट. लेट्स चेक दिस एग्जांपल नाउ. HCF of 2 by 7, 4 by 21 and 181 by 280 निकालना है. ठीक है, जिसको नहीं आता वो सवाल डायरेक्ट छोड़ेगा. ये IFT में, IFT लेवल का सवाल है, ठीक है, जो ये डायरेक्ट पूछ लेता है, राइट. CAT में भी you will need this understanding how to find out HCF or LCM of fractions, but IFT sometimes directly asks this question. ठीक है, the first thing you need to do is check if the fractions are in the lowest forms. 2 by 7 हाँ भाई lowest form में है, 4 by 21 lowest form में है, 181 by 280 lowest form में है, कोई common factor नहीं है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का. अब क्या करना है? फाइंड आउट द HCF ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइड बाय द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर. इतना तो कर लोगे. इंटीजर्स का तो पता है HCF कैसे निकालना है, इंटीजर्स का तो पता है LCM कैसे निकालना है. खत्म. इज दिस क्लियर? गिव मी यस और नो. Likewise, how to find out the LCM of 2 or more fractions? First thing first, you'll have to check if the fractions are in lowest forms. नहीं है तो lowest form में ले आना उन्हें. उसके बाद फिर ये फॉर्मूला यूज करना. LCM of 2 or more fractions is equal to LCM of numerators divided by HCF of denominators. फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आ गया अगर IFT में. अब तुम बोलोगे ये तो डेसिमल है, आपने तो हमें फ्रैक्शन बताया, भाई डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो. डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 1000. कैंसिल कर लो. क्या ये लोएस्ट फॉर्म्स में है? नहीं है. तो 5 5s 5 2s 5 1s 5 2s, राइट. 25 7s 25 40s. ये आ गए लोएस्ट फॉर्म्स. अब एलसीएम निकालना है तो LCM ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स. LCM of numerators 5, 1 and 7 is 35. HCF of denominators 2 to 40 is 2. Answer is 17.5. Is this clear? Your answer to 17.5. चलो अभी देखते हैं भाई क्या 2006 का सवाल HCF LCM के ऊपर. ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और चेक दिस आउट. ये टॉप राइट पे क्या लिखा है? सॉल्व इन लेस देन 30 सेकंड्स. CAT 2016 का 6 का सवाल है and should have been solved in less than 30 seconds. Which is largest amongst the following? 2 raised to the power 1 by 2, 3 raised to the power 1 by 3, 4 raised to the power 1 by 4, 6 raised to the power 1 by 6, या फिर 12 raised to the power 1 by 12. चलो, give it a shot. Let's see. कोई जो भी दिमाग में आ रहा है, just kind of write it down and send it across to me in the comment section box. जहां तक भी पहुंचोगे, just mention it in the comment section box कि सर हम यहीं तक पहुंच सके, इतना समझ में आया हमें. ठीक है, I'll give you 1 minute to look at this question. It's very important, this question. बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है इसमें. बेसिक जो मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया पिछले ऑलमोस्ट 1 घंटे में, से वो यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. वो यूज करके तुम एक कैट का सवाल सॉल्व कर सकते थे.
2 to the power 1/2। अच्छा, आकाश, यशवंत, बहुत बढ़िया। सुशील कह रहा है 12 12 नहीं है भाई, 12 is to the power 1/2 यू मीन, ओके। अच्छा जी, 3 is to the power 1/4 तो ऑप्शन ही नहीं है। मोहम्मद अब्दुल, कहाँ सो रहे हो तुम? क्या 2006 का सवाल है गाइस ये? 30 सेकंड से कम में सॉल्व हो जाना चाहिए। 2 is to the power 1/2। जो लोग कह रहे हैं 2 is to the power 1/2, अब एक ढंग से देखो, आंखें खोल के देखो। एक ऑप्शन है 4 is to the power 1/4। 4 is to the power 1/4 का मतलब क्या हुआ? 4 क्या होता है? 2 स्क्वायर। इसको रेस करेंगे 1/4 से, ये बन जाएगा कितना? 2। 2 into 1/4। 2 1s are 2 2s are, अबे ये भी 2 is to the power 1/2 है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है और जो थर्ड ऑप्शन है वे सेम है दोनों। ये तुम्हें पागल बनाने के लिए दिया है, और आंसर एक ही है, तो इनमें से तो ऑब्वियसली कोई नहीं हो सकता, और दो ऑप्शन तो थे। समझ में आया? जैसे जिसने 2 is to the power 1/2 बोला था, मेरे को जवाब दो पहले, क्या ये बात समझ में आई? और बाकी सबको भी। वैसे ऐसे सोचना है कैट एग्जाम में, जैसे मैंने भी तुम्हें बताया, राइट? कुछ नहीं है इसमें कि हमारे पास मैथ्स नहीं थी 11 12th में, हमने ग्रेजुएशन में मैथ्स ली, मेरे से कैट नहीं होगा, कुछ नहीं चाहिए इसमें मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। इतना तो पढ़ा था तुमने 10th तक, तभी तो 11th में पहुंचे थे तुम, राइट? इतना तो पढ़ा होगा। यू मस्ट हैव लर्नड एटलीस्ट दिस मच अबाउट मैथमेटिक्स यार। तो ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से मैथ्स नहीं थी तुम्हारे पास। जितने भी नालायक थे तुम मैथ्स में, कोई बात नहीं, ये बेसिक्स तो पढ़े थे मैथ्स में, थी तो सही। भले 50 नंबर आए हो मैथ्स में, यू स्टिल कैन क्लियर कैट एग्जाम। यू डोंट नीड टू बी a 90 प्लस इन मैथमेटिक्स। मेरे लाइफ में आई वुड से अकेडमिकली सिर्फ एक बार 92 आए थे, ना तो मेरे इंग्लिश में कभी 90, इंग्लिश में डिस्टिंक्शन नहीं आई मेरी कभी लाइफ में 75 प्लस, राइट? हाईएस्ट आई टच्ड इन इंग्लिश वाज, आई हैड टच्ड इन इंग्लिश वाज 71 इन माय 10th। 12th में भी 67 आ गए थे, ठीक है? ऐसा था मैं। मैथ्स में हाईएस्ट आई एवर टच्ड वाज 92 इन माय 10th बोर्ड। 12th में अगेन आई ड्रॉप टू 88, राइट? कभी नहीं आया मेरे। आई स्कोर्ड 98 प्लस इन माय कैट एग्जाम, ठीक है? तो टेक आउट दैट फियर, टेक आउट दैट लो कॉन्फिडेंस इन यू। मुझसे नहीं होगा, राइट? हैवी मैथमेटिक्स है, जो भी हैवी इंग्लिश है, कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल बेसिक्स। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन वेरी इजीली एलिमिनेट, ये दोनों तो ऑप्शन नहीं हो सकते भाई, बिकॉज दे आर इक्वल, राइट? नेक्स्ट थिंग, 3 is to the power 1/3, 6 is to the power 1/6, 12 is to the power 1/12। अरे यार, इसको मैं कैट में कैसे सॉल्व करूं? उस टाइम पे तो कैलकुलेटर भी नहीं होता था। आज भी अगर कैलकुलेटर दिया जाए तुम्हें, देयर इज नो प्रोविजन टू डू दिस काइंड ऑफ अंडर रूटिंग, ठीक है? इतना बड़ा स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो ना, क्यूबिक रूट, व्हाटएवर, क्वाड्रेटिक रूट तुम नहीं निकाल सकते हो, राइट? तो हाउ डिड पीपल सॉल्व दिस क्वेश्चन इफ यू कुड नॉट फाइंड आउट द रूट? यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो व्हाट इज 3 is to the power 1/3। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो व्हाट इज 6 is to the power 1/6। इसकी वैल्यू जानना नहीं है, राइट? दिस इज नॉट व्हाट कैट इज। देन देयर हैज टू बी सम लॉजिक, राइट? लेट्स सी व्हाट दैट लॉजिक वुड बी। कुछ इजी नंबर्स लेते हैं पहले तो। लेट्स से लेट्स से 2 3 10 12, चार नंबर्स है मेरे पास, राइट? 2 इज द लीस्ट, 3 से बड़ा 10 है, 10 से बड़ा 12 है, ठीक है? क्लियरली ये रिलेशनशिप है मेरा, 12 सबसे बड़ा है। अब चेक करो, इस चीज को चेक करो, व्हाट आई एम गोना शो यू नाउ। अगर मैं इसको 10 से रेज कर दूं, 3 को भी 10 से रेज कर दूं, 10 को भी 10 से रेज कर दूं, और 12 को भी 10 से रेज कर दूं, वैल्यू जितनी भी हो, क्या ये रिलेशनशिप अभी भी होल्ड करेगा? दैट this will still be less than this, this will still be less than this, will still be less than this? Yes or no? Give me a yes or no. I've raised it with some common power, 10. I don't know what the number is going to, what the numbers are going to be, but will this relationship still hold? जो सबसे लेफ्ट में है still the least, जो सबसे राइट में है still the highest. Yes or no, guys? I've just received like 10 yeses. What about others? ठीक है?
अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में एक हाईएस्ट है, एक लोएस्ट होगा, राइट? मुझे नहीं पता भाई क्या हाईएस्ट है क्या लोएस्ट है, लेकिन इन सबको अगर मैं एक कॉमन पावर से रेस कर दूं, क्या हाईएस्ट जो अभी है वो तब भी होगा रेस करने के बाद भी, और जो लोएस्ट है जो अभी है वो तब भी होगा रेस करने के बाद? इज दिस क्लियर? यस और नो? किससे रेस करूंगा मैं इसको? एक ऐसी पावर से रेस करूंगा जो मेरे को इंटीजर दे, राइट? एक ऐसी पावर के साथ रेस करूंगा कि उस मतलब उसको सॉल्व करने के बाद मेरे वैल्यूज इंटीजर आए, क्योंकि भाई ह्यूमन आई इज वेरी, आई वुड से लेमैन, नॉट ह्यूमन आई, लेमैन इज वेरी कंफर्टेबल विद इंटीजर्स, राइट? मेरे को आप इंटीजर दिखा दो, अभी मेरे को दिखाया आपने मेरे को 2 3 10 12, मैं बता सकता हूँ 12 बड़ा है। मेरे को आप 1000 2000 10,000 100,000 दे दो, इंटीजर्स है, मैं बता सकता हूँ 100,000 बड़ा है। एनीबडी कैन टेल, right? So my motive became in this exam, when I, as in any candidate, an aspirant, a 99 percentiler, when I am looking at this question, my motive is to convert all these surds, इनको surds कहते हैं, into integers. कैसे convert करूंगा? Check this out. इनके denominators देखो, 2, 3, 4, 6, 12. इनका LCM क्या होता है? 12. इन सब numbers को 12 से raise कर दो. This will become 12, 2 raised to power 1 by 2 raised to power 12. 3 raised to power 1 by 3 raised to power 12. 4 raised to power 1 by 4 raised to power 12. 6 raised to power 1 by 6 raised to power 12. 12 raised to power 1 by 12 raised to power 12. ठीक है? जो पहले हाईएस्ट था वो भी हाईएस्ट होगा, जो पहले लोएस्ट था वो भी लोएस्ट होगा. Guys, is this clear? Yes or no? आंसर नहीं आया अभी, बट इतना समझ में आया सबको? चलो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं. 2 raised to power 1 by 2 into 12. 3 raised to power 1 by 3 into 12. 4 raised to power 1 by 4 into 12. 6 raised to power 1 by 6 into 12. 12 raised to power 1 by 12 into 12. 12 से 12 cancel. 6 raised to power 2. 4 3s are 3, 4s are 2, 6 are 2s. Raised to power 6 is 64. 3 raised to power 4 is 81. 4 raised to power 3 is 64. 6 raised to power 2 is 36. 12 raised to power 1 is 12. Which is the highest amongst the following? 81. Which is the highest amongst these 3 raised to power 1 by 3? Question is not asking you what is the value of 3 raised to power 1 by 3. Question ने कैट ने बहुत स्मार्टली आपसे इतना पूछा, भाई लार्जेस्ट बताओ, लार्जेस्ट आप किस लॉजिक से निकालोगे? अगर वो पूछ लेता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 raised to power 1 by 3 तो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो जाता. अभी ये लॉजिक का क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है. गिव मी a yes if this is clear. मजा आ रहा है सबको? अभी तक सबको मजा आया? सारे क्वेश्चन के आके उठा लो यार, सारे फैंटास्टिक क्वेश्चंस हैं. उदय कह रहा है आई एम ब्लैंक सर. कोई बात नहीं, तो एक बार इस रिकॉर्डिंग को फिर से देख लेना, राइट? और क्लासेस आगे ज्वाइन करो एंड थिंग्स विल बी क्लियर. ठीक है, चलो लेट्स लुक एट अनदर टॉपिक व्हिच इज फैक्टराइजेशन. उसके बाद फिर हम एग्जैक्ट 2017 पे क्वेश्चन करेंगे. Give 1 second. Let's do factorization of numbers. एक नंबर आपको दिया गया है से 24. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहता है? इसको तोड़ो, प्राइम नंबर्स में तोड़ो इसको. 2 into 3 into 2 into 3 into 2. 3 नहीं है, ठीक है? प्राइम नंबर्स में टूट गया, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. सिंपल, राइट? जो भी मैं नंबर देख रहा हूँ सब प्राइम नंबर्स हैं. क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 2 into 4 into 3 and call it a prime factorization? No. Why? Because there is a number here which is not a prime number. मुझे सारे prime numbers चाहिए, तब मैं only then I can call this a prime factorization of a number. Okay. So a number where it can be represented as a raised to the power p multiplied by b raised to the power q multiplied by c raised to the power r
multiplied by d raised to s and so on. ठीक है, नॉन इंजीनियर्स या इंजीनियर्स who fear mathematics, who fear variables, don't worry, ये नहीं समझ में आया, बकवास है ये, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेंशन किया गया ये जो इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं पावर, ठीक है। ये बेस है हमारे प्राइम नंबर्स, जैसे हमने अभी देखा 24 को तोड़ेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3, ये बन गया हमारा a रेज़ टू पावर p इंटू q रेज़ टू पावर b रेज़ टू पावर q, ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, राइट। a क्या हुआ इसमें 2, p क्या हुआ इसमें 3, b क्या हुआ इसमें 3, q क्या हुआ इसमें 1, that's it, this is all that this expression is trying to show you. That is a, b, c, d, e, f, whatever are prime numbers and they're co-prime to each other. मतलब मैं ऐसे नहीं लिख सकता 24 को 6 into 4 नहीं लिख सकता मैं प्राइम फैक्टराइजेशन जब मैं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि they are not co-prime to each other. That means they have a common factor between the two, right? They need to be prime. ठीक है, ये भी प्राइम होना चाहिए, ये भी प्राइम होना चाहिए, ठीक है। Let's take an example. 720 को तोड़ने बैठोगे, you will get 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 करके देख लेना। ये मेरे को if people, you know, if you have kind of got scared कि सर ने एकदम से कैसे बोल दिया 2 into 2, ये मेरे को नहीं पता था भाई, ये मैं करके यहाँ पे लिखा इसलिए मैं बोल पाया हूँ, ठीक है। सो टेंशन लेने की बात नहीं है कि 720 देखते ही सर बोलने लग गए 2 into 2 into 2 and so on, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। I took my time and I wrote this down, it's fine, okay. Likewise 420 can be written as 2 raised to power 2 into 3 raised to power 1 into 5 raised to power 1 into 7 raised to power 1. So this is called prime factorization of 420. Prime factorized form of 420. Why? Because check out the bases. 2, 3, 5, 7. They all are prime. Right? And their powers are powers 1, 2, 1, 1, so on. Then there is concept of co-prime. तो यहाँ पे कहीं पे mention हुआ था. चलो discuss कर लेते हैं ये भी. दो numbers हैं तुम्हारे पास 2 और 5. These two numbers are co-prime only when their HCF is 1. इसका मतलब इनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। 2 और 6 क्या ही co-prime है? 2 और 6 are not co-prime. Why? Because they have a HCF of 2 or their common factor is 2. ठीक है? Only those numbers are co-prime that have a common factor of 1. That's it. ठीक है? बाकी कुछ फॉर्मूले हैं, let's see. Number of factors of a number कैसे निकालते हैं? एक नंबर तुम्हें दिया गया है, राइट, उसको प्राइम फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, प्राइम फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? उनकी पावर्स को पावर्स में 1 ऐड करके सबको मल्टीप्लाई करके। कैसे देखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना गाइस, अगेन डोंट वरी अगर अभी तक नहीं समझ में आया, राइट, ये चीज नहीं समझ में आई है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, सब कुछ बुक में दिया गया तुम्हारे और ये तुम क्लास में भी पढ़ोगे, सो नो नीड टू वरी। एज आई सेड, ये 1.5 घंटे में तुम सब कुछ नहीं सीख सकते। आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस दिस कांसेप्ट टू यू। लेट्स चेक आउट। 420 सबको समझ में आ गया था कि प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म हमने इसकी ये लिखी थी। अब अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लें, दिस इज अ डायरेक्ट कैट क्वेश्चन, ओके, पे अटेंशन, दिस हैज बीन डायरेक्ट कैट क्वेश्चन। नंबर कुछ और था बट डायरेक्ट कैट क्वेश्चन वाज हाउ मेनी फैक्टर्स डज 420 हैव? स्टेप 1, प्राइम फैक्टराइज इट। फैक्टराइजेशन कर लो उसकी, प्राइम फैक्टराइज फॉर्म लिख लो उसकी, विच इज समथिंग लाइक दिस। अभी देखा हमने क्यों है प्राइम फैक्टराइज फॉर्म, क्योंकि भाई ये सारे बेसिस प्राइम है एंड आर को प्राइम टू ईच अदर एंड इनकी कुछ ना कुछ पावर्स हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? सिंपल फॉर्मूला। पहली चीज, क्या ये प्राइम फैक्टराइज फॉर्म है? यस। अगर है तो इनकी पावर्स उठाओ और इन सब में 1 1 ऐड करो। 2 की पावर क्या है? 2, 1 ऐड करो। 3 की पावर क्या है? 1 1 ऐड करो। 5 की पावर क्या है? 1 1 ऐड करो। 7 की पावर क्या है? 1 1 ऐड करो एंड देन मल्टीप्लाई देम ऑल। 3 into 2 into 2 into 2, 3 to the 6, 6 to the 12, 12 to the 24. There are 24 factors of the number 420. Direct question. आज की डेट में भी IFT ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा तुम्हारे सामने। स्टेप 1 will be factorize the number. Step 2, use formula. खत्म।
Okay, let's do a simpler example. How many factors are there of the number 20? 20 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे. 2 raised to the power 2 into 3 तो नहीं होता है, तो 3 raised to the power 0 into 5 होता है, 5 raised to the power 1 into 7 भी नहीं होता है, so raised to the power 0. 11 भी नहीं होता है, raised to the power 0. बाकी सबकी पावर 0 है, लेकिन सबकी पावर 0 है, तो होना ना होना उनके एक ही बराबर है. ठीक है, तो स्टेप 1 कर लिया हमने, प्राइम फैक्टराइज. स्टेप 2, पावर्स उठाओ. 0 + 1 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1 ही कर रहे होंगे, तो लेट इट बी, इग्नोर दिस. ठीक है, प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 और 5 एग्जिस्ट करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में. ठीक है, पावर को में 1 ऐड कर दो, 2 + 1 1 + 1, इनको मल्टीप्लाई कर दो, दिस बिकम्स 3 × 2. देयर आर 6 फैक्टर्स ऑफ 20. और वेरीफाई कर लेते हैं, 6 फैक्टर्स ऑफ 20 यार कैसे निकालते थे बचपन में. 10 4 × 5. ठीक है, क्या है 6 फैक्टर्स ऑफ 20? 20 itself. 10 5 4 2 1. Is this clear guys? Yes or no? इतना सबको समझ में आया? फॉर्मूला ये एकदम से अगर नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, 10-20% 30% मार्जिन ऑफ एरर अगर अभी भी डाउट है अगर तुम्हारे में, कोई बात नहीं, राइट, पढ़ लेना, बुक में है ये. ठीक है, वैसे एक सम ऑफ फैक्टर्स का होता है, यू कैन डू दैट योरसेल्फ. Then I'm going to do this ZAT 2017 question with you, with the understanding that we have just received, this learning that we have just got. इससे हम एक ZAT 2017 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. चेक दिस आउट, टॉप राइट पे क्या लिखा है, सॉल्व इन लेस देन 30 seconds. ये क्वेश्चन 2017 में आया था ZAT में, और 30 सेकंड से कम में सॉल्व हो जाना चाहिए था. गो अहेड एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. But stop guys, इससे नहीं हुआ, please mention that you tried and you didn't get the answer. It's fine, but engage, let me know. Waiting for responses guys. चलो सारे आंसर मिल चुके हैं मेरे को, 5 6 7 8 9. बहुत बढ़िया. यहाँ पे 10 20 30 40 100 भी लिखा होता तो वो भी देते तुम लोग को भी, which is fine. चलो let's see. ये कह रहा है if n, there is a number, n ऐसे जैसे कुछ आता है, अगेन टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई नंबर है which is equal to 11 raised to the power something multiplied by 7 raised to the power something multiplied by 5 raised to the power something multiplied by 3 raised to the power something. Guys see, एक इक्वेशन हम सबने देखी, आपने भी देखी, मैंने भी देखी, राइट. कुछ लोग एक इक्वेशन देखकर घबरा गए होंगे, राइट. कुछ लोग इक्वेशन देखकर कहेंगे भैया मतलब कुछ अजीब सा ही हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, हमने बेस में तो वेरिएबल पढ़ा था, तो पावर में आ गया वेरिएबल, राइट, हमसे नहीं होगा, राइट. जो बाकी बचे कुछ लोग होंगे वो अटेम्प्ट कर रहे होंगे लेकिन फंस गए होंगे, ठीक है, गुम हो गए होंगे इन द सॉल्यूशन.
right? So again, it's about what perception. How are you perceiving this question? How are you perceiving this equation, right? The practice enough. I'm perceiving it in a way कि हाँ भाई एक number है which is equal to, check this out, it's a prime factorized form. Base क्या है इसके? Prime numbers. Are they co-prime to each other? Yes. ठीक है. So एक prime factorized form दी गई है एक number की. ठीक है. पावर में कुछ ना कुछ है. भूल जाओ पावर में क्या है. क्या करना है हमने q माइनस को याद थोड़ी रखना हमने इसको. आंसर निकालना है हमने, अभी निकालेंगे देखो. And is given it a perfect cube. ठीक है. This solves the question for me. It's a perfect cube. This gives me a lot of information. Perfect cube क्या होता है भाई? Perfect cube. This is a perfect cube of 3. इसका मतलब 3 square 3 is 27. 8 perfect cube of 2. ठीक है. 64 is a perfect cube of 8. But 8 can be written as 2 raised to the power 3. Therefore, this is 2 raised to the power 3 raised to the power 3. Right? 2 raised to the power 6. 3 plus 3 over a. ठीक है. You get 2 raised to the power 6. So 64 is 2 raised to the power 6. See what I'm trying to show you. Sorry, 4 का cube is 64. यार मैं क्या कर रहा हूँ मैं? Square निकाल रहा हूँ मैं. 64. 4 का cube is 64. Okay, and 4 can be written as 2 square. So this becomes 3. So this is 2 raised to the power 6. Okay, so what it means is when it is given that a number is a perfect cube, ठीक है, उस नंबर को जब आप तोड़ोगे प्राइम फैक्टर फॉर्म में, राइट, ठीक है, जब उसको प्राइम फैक्टर फॉर्म में जब आप तोड़ोगे तो सबकी पावर या तो 3 होगी या 3 की मल्टीपल होगी. फॉर एग्जाम्पल 216 कैन बी रिटन एज 0 is not allowed. 0 करके क्या करोगे अभी देखेंगे what it means. Why is 0 not allowed? ठीक है. 216 देखते हैं. 216 is a cube of 6. 6 can be written as 2 into 3 raised to the power 3. This means 216 can be written as 2 cube into 3 cube. ठीक है. So if it is given that there is a number which is a perfect cube, उसको जब आप प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में तोड़ोगे तो सब प्राइम नंबर्स का पावर या तो 3 होगा या 3 का मल्टीपल होगा. गाइस, इज दिस क्लियर? ताकि जब आप इसका क्यूब रूट निकालो, रूट क्या होता है? दिस 1/3. जब क्यूब रूट निकालो, ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, दिस विल बिकम 2 into 3 which is 6 only. गाइस, इतनी बात समझ में आई? फॉर अ नंबर टू बी अ परफेक्ट क्यूब, उसको प्राइम फैक्टराइज करके जो भी वैल्यूज आती हैं, राइट, उनकी पावर या तो 3 होनी चाहिए या 3 की मल्टीपल होनी चाहिए. इतनी बात सबको समझ में आई? यस और नो? ठीक है. अब ये कह रहा है ये नंबर है भाई, इतना जो कॉम्प्लेक्स सा दिया हुआ था, ये पूरा नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब. ठीक है. इसका मतलब इसका मैं क्यूब रूट निकाल सकता हूँ. इसका मतलब इसको मैं रेज़ टू द पावर 1/3 कर सकता हूँ और तब भी इंटीग्रल वैल्यू आएगी मेरी, है ना? ऐसा क्यों? 25 को अगर हम रेज़ टू द पावर 1/3 करेंगे तो इंटीग्रल वैल्यू क्यों नहीं आएगी? ये देखो भाई, इसलिए नहीं आएगी, राइट. दिस विल बिकम 5 रेज़ टू द पावर 2/3 सर्ड बन जाएगा ये, राइट. इसलिए 5 रेज़ टू द पावर 3 को जब मैं 1/3 से पावर की रेस करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल होकर एक इंटीग्रल वैल्यू देगा मेरे को 5. दिस इज व्हाट आई मीन. ठीक है. लेट्स सी. नाउ दिस इज अ परफेक्ट क्यूब. इतना बात समझ में आ गई? इसका मतलब इसके पावर्स, ये जो सारी पावर दिख रही है मेरे को अजीब अजीब सी, या तो ये 3 दे रही है या तो 3 का मल्टीपल दे रही है. दैट्स इट. ठीक है. वेयर P, Q, R and S आर पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है. ये देखो, अगर जिसको नहीं पता इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, राइट, वो P को 1.7 1.3 लेकर भी आगे काम कर सकता है, क्योंकि उसको नहीं पता, उसने मेरी ये क्लास अटेंड नहीं करी थी, शुरू के 15 मिनट में सो रहा था वो,
राइट, या इग्नोर कर रहा था उस अंडरस्टैंडिंग को, उस लर्निंग को, है ना? तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, यू शुड नो. Then the smallest value of p plus q plus r plus s is what you have to find out. Smallest value निकालनी है. पहली बात, p plus 7 या तो 3 होगा या 3 का मल्टीपल होगा, राइट? लेकिन अगर मैं बोलूं p plus 7 इज इक्वल टू 3 करना है मैंने, तो मेरे को p को -4 करना पड़ता. लेकिन क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया, भाई ये जो तुम p q r s देख रहे हो, these are positive integers. That means this is either 0 or 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or whatever, so on. ठीक है? So इसको मेरे को 3 का मल्टीपल बनाने के लिए क्लोजेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू p की क्या डालनी पड़ेगी, 2. तब जाके ये 9 देगा, which is the 3 का मल्टीपल. ठीक है? That means p is equal to 2. कंक्लूड हो गया. q minus 2 मेरा या तो 3 होना चाहिए या 3 का मल्टीपल होना चाहिए. ठीक है? At the same time, what I'm saying is कि q is a positive integer. ठीक है? अब देखो, कोई कह रहा है 5, कोई कह रहा है 2. बहुत बढ़िया. अब देखते हैं हम ये अपना पहला स्क्रीन. पॉजिटिव इंटीजर कहाँ है हमारे? ये रहे हमारे इंटीजर्स. 1 second guys, there's a call, give me 1 second. हेलो. नहीं सर, हमें तो okay, cool. Okay, here we go guys. So what we're discussing, positive integers. Yeah, ये रहे integers, ये रहे हमारे positive integers. ठीक है? अब let's see. अब हम इस केस में बहुत बढ़िया, ये है इस क्वेश्चन का कैच. क्या तुम यहाँ पे 2 लोगे या तुम यहाँ पे 5 लोगे? हमें क्या चाहिए, 3 या 3 का मल्टीपल. लेकिन चेक दिस आउट, एक नुएंस इसका. अगर मैं इसको 0 बना दूं, अगर मैं इस पावर को 0 बना दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 7 raised to power 0. 7 raised to power 0 क्या होता है, 1. क्या ये कुछ डिफाई कर रहा है दैट दिस इज अ परफेक्ट क्यूब? नो, it can still be 1. It doesn't say that 7 has to be there. It's just a way of representing, right? They could have also written 13, 17 raised to the power 0. Does it mean that they exist? These prime numbers exist in the number? No. It's just that तुम्हें confuse करने के लिए उसने 7 raised to the power cube minus 2 कर दिया, right? एंड मेरे को बताना है कि मेरे को करना है इस पावर को 3 या 3 का मल्टीपल, लेकिन 0 भी कर सकता हूं मैं, राइट? दैट मीन्स q कैन बी इक्वल टू 2. Why? In that case, 2 minus 2 will become 0. The power will become 0. The number will become 10 raised to a 0, which will be equal to 1 only. Doesn't matter. Still a perfect cube. Next, 5 raised to power r plus 1. R plus 1 has to be again या तो 0 या फिर 3 या 3 का मल्टीपल. ओके? और r पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. ठीक है? और सबसे मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है मैंने इन सबके एडिशन की, राइट? तो आर में क्या ऐड करूं? आर में 1 ऐड करके मेरे को 3 या 3 का मल्टीपल चाहिए यार. -2 कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है सारे. 1 कर सकता हूं, 1 + 1 2 हो जाएगा, इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. 2 कर सकता हूं, 2 + 1 3 हो जाएगा, यस. सो आर बिकम्स 2 अगेन. नेक्स्ट, एस इज एस ओनली. ठीक है? अब इसको चाहिए, ये चाहिए हमें पॉजिटिव इंटीजर. चलो बताओ, और यहाँ पे क्या लोगे तुम आंसर? What will be the value of s? Some are saying 0, 3. Okay. मैं क्लास में, क्लास ठीक है.
Yeah, there's one second here. Hello. Guys, give me 1 minute. I'll be back. Okay, I'm here. सर कहाँ गायब हो गए? ये रहा भाई शिवम. Take your time. Okay, I'm back. चलो, okay. Where were we? P plus 7 हमने निकाल लिया. P is equal to 2, Q is equal to 2, R is equal to 2. Right? ये आया हमारे पास S 3 की पावर ये रही S हमारी, and this has to be either 3 or 3 का multiple. Why cannot it be 0? Because it clearly says this has to be a positive integer. Right? So the minimum value S can take is 3. Okay, so the smallest value of P plus Q plus R plus S is 2 plus 2 plus 2 plus 3, which is equal to 9, which is my option E. Is this clear? Okay. Okay, I think we're coming up on time now. Number of zeros in an expression is another topic. How are the zeros formed in the back of the number? You should have at least one pair of 2 and 5. Okay. ये concept हम next time discuss कर सकते हैं. Then we have remainder theorem. Again, we'll discuss some other time. Then we have units digit of a product. Then we have base system. It's not a very famous concept, base systems, but CAT has had a history of asking questions around this. Okay. So what I'll do is I'll keep the session open for a couple of minutes. I hope you enjoyed today's session, guys. Let's connect again very soon. जहाँ पे हम और ऐसे fun activities बोल रहा हूँ. Activity हुई है, मजा आया, right? We're going to discuss fun concepts again sometime soon. And people who have not enrolled yet, I would say go and check out our programs and enroll if you want to interact with us more frequently. These are the kind of sessions we have, help you understand what CAD is about and try to ease your learning journey here. Mera LinkedIn name as well as your Insta page name, Satakshi is asking. People, just hold on. I'll give you, you can look at this page. My name is Bhavuk Pujara. This is my LinkedIn ID. And Insta ID, do not ping me on my personal channel, guys. You will find me there, of course, but that's more of my personal channel. Right? If you want to contact me and discuss about CAT, right? It's not just about, sir ने बोला था पढ़ना है तो चलो, आज मैं 2 घंटे सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ूंगा. नहीं, you have to make sense out of it. Right? तो भले 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ो, आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ो, लेकिन उसके बाद 3 आरसी कर लो बेसिक लेवल, तो तुम्हें पता चलेगा कि पढ़ के करना क्या है. राइट? what is it that I have to catch from these sentences? क्या सीखना है ये पढ़ के, राइट? पढ़ते जाओ 15 मिनट रियलाइज होगा कि अरे कुछ I'm not growing anywhere,
राइट, कुछ हो ही नहीं रहा है ये पढ़ के, आई एम स्टिल नॉट एबल टू सॉल्व आरसी व्हेन आई एम सॉल्विंग आफ्टर 10 days 15 days, नहीं, टू मेक इट अ हैबिट कि रीड करके स्किम करो, कुछ भी करो, रीड करके यू हैव टू मेक सेंस आउट ऑफ इट, राइट, you have to start making conclusions, start drawing inferences from the paragraphs, and then have to join the information together. So read, then pick some RCs, read again some new content, then pick some RCs. ऐसे करते करते you'll see 15-20 days, 25 days, you'll start getting better. फिर किसी ने मेरे से चैनल चेक कर लिया ना, कह रहे करिश्मा तन्ना आपका क्रश था, ये बेटे बहुत बदमाश लड़का है यार ये शिवम, तो पहले कहता है कीप टेकिंग दी सेशंस विदाउट अ प्लीज, अब कह रहे हैं करिश्मा तन्ना देख रहा है मेरे इंस्टा चैनल पे, स्नीकी. Preparation tip for college third year college student who wants to prepare for CAT, please. Man, okay, person has left. Chalo. Tips for those who are starting now. Starting now. See, बहुत ही बड़ा word बोल दिया तुमने, which is tips for those who are starting now. Now is the keyword here, right? If you have decided that you have started now, right, or you are still thinking that you need to start now, right? There's a difference. तो अगर तुमने decide कर लिया है, आज ही करना है, तो I would say start from basics, right? As I said, एकदम से ही ना ओवरनाइट ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सुबह उठे, राइट, पहले कैट के बारे में कुछ पता नहीं था, रातों रात कुछ हुआ, तुम्हें सपना आया कि मैं तो आईएम पहुंच गया, सुबह उठ के कह रहे हो मेरे को आईएम जाना है, ऐसा नहीं होता है, राइट. ऐसा है तो फिर 3 दिन बाद फिर सपना आएगा हार्वर्ड जाना है, राइट. तो पहले तो जस्ट मेक अ डिसीजन फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू वांट टू डू एमबीए, राइट, देन आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू डू एमबीए, देन व्हिच कॉलेजेस डू आई वांट टू गेट इनटू, देन व्हिच कॉलेजेस कैन आई गेट इनटू, राइट. अगर तुम्हारा 50-50% आया है ग्रेजुएशन में तो तुम आईएम भूल जाओ, राइट. Let's face facts, right? You can think about other colleges. So answer those questions. Then you think that okay, I've decided. I would say basics उठाओ. There's no shortcut to success, guys. Right? People जो बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं अरे ये कर लो वो कर लो, नहीं, वो पहले हार्ड वर्क का एक बेस बनाना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद then you can apply and understand and then apply shortcuts. तो बेस बनाना बहुत जरूरी है. RCs, DIs, LR, quants में नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, इन बेसिक से स्टार्ट करो and solve very very basic questions, ठीक है. डू नॉट थिंक अबाउट अरे कैट का क्वेश्चन कैसे होगा, हम तो 15 दिन हो गए बेसिक करे जा रहे हैं, कैट तक पहुंचने नहीं पहुंचोगे 15 दिन में, राइट. लोगों को 2 साल 4 साल लग जाते हैं भाई कैट में, और अच्छी अगर तुम प्रिपरेशन करो 4 महीने में आराम से कैट लेवल पे पहुंच जाओगे, राइट. यू हैव टू जस्ट फॉलो द प्रोसेस. तो बिल्कुल बेस से स्टार्ट करो. रोज 3-4-5 DI सेट्स, रोज 3-4-5 LR सेट्स, रोज 3 RCs, रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, राइट. रोज कुछ ना कुछ QA के बारे में पढ़ो, राइट. तुम जॉब कर रहे हो, ठीक है, जॉब करो, खाना खाते हो, खाना खाओ, सोते हो, सो, राइट. इसके बीच में जो टाइम बचता है उसके लिए तुम्हें पूरा पढ़ाई में निकालना पड़ेगा इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग, राइट. हलवा नहीं है ये एग्जाम, आज क्लास अटेंड करी, बहुत मजा आया, ठीक है, बट द सेम टाइम दिस इज नॉट द परसेप्शन ऑफ कैट दैट यू शुड टेक अवे, राइट. दिस इज जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू कैट, भैया ऐसा भी है कैट में, राइट. दिस इज व्हाट कैट इज अबाउट, बट इट्स नॉट ऑल, राइट. देयर इज अ लॉट दैट गोज इनटू कैट, ठीक है. How do you manage time between job and teaching? It's not managing time between job and teaching. It's managing time between my job and my passion. Right? My passion is to teach and mentor people, to be honest. The reason I have my